तो एक तो श्रोता થઈ ગયા, એક શ્રોતા થઈ ગયા અને ત્રીજા થાય સરોતા, જે કેવલ જોવા આવે કે શું થઈ રહ્યો છે, કોણ આવ્યો છે, કેટલા આવ્યો છે અને વ્યાસજી મહારાજ શું કહે છે અને બહાર જઈને પછી સરોતા જેવું કાપે. તો અમે તો અહીંયા અમારા યજમાન એટલા ધન્યભાગી છે કે એમને ત્રણેયની વ્યવસ્થા કરી છે. જે લોકો શ્રોતા હોય એમને માટે કથાની વ્યવસ્થા કરી છે અને જે લોકો શ્રોતા હોય એમના માટે આ મ્યુઝિશિયન લાયા છે જે ધમધમાટ વગાડે છે, ઊંઘવા તો ના જ દે. અને જે લોકો સરોતા છે એ સરોતા માટે એવું કહેવાયું છે શાસ્ત્રમાં કે મૃદંગોપી મુખલેપેન કરોતિ મધુર ધ્વનિ. મૃદંગને જ્યારે વગાડવું હોય ને તો એને લોટની યા પાવડર લગાવવું પડે. ઢોલક આ વગાડે છે એટલે પાવડર યા લોટ લગાવવું પડે તો એની ધ્વનિ સરસ થાય. તો કોઈ તમારો કેટલો પણ દુશ્મન હોય, કોઈ કેટલો પણ આલોચક હોય, નિંદક હોય તમારો, એને તમે કંઈ ગળ્યું ખવડાવી દો ને, એને કંઈ સારું ખવડાવી દો એટલે એ તમારી સ્તુતિ કરવા લાગે. એટલે અમે રોજે પ્રસાદની સારી વ્યવસ્થા રાખી છે. કોઈ દિવસ સમોસા ખવડાવો, કચોરી ખવડાવો, ઉપમા ખવડાવો, ખમણ ખવડાવો, બધું ખવડાવો. કોઈ નિંદા ના કરે, આલોચના ના કરે, એવી વ્યવસ્થા અમે રાખી. તો ત્રણેય જણ માટે અમે ભગવાનની કૃપાથી એવી સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે. તો એવા શ્રોતા આપણે બનીને રહીએ તો ફળ તો ભગવાન આપે જ છે. આ સુંદર ફળ આપી રહ્યો છે. ભગવત કથા રૂપી ફળ તમે ક્યાંય ફરી લો પણ એ મળતું નથી. ને આપણો તો એવો સાનિધ્ય કે ભગવાનના સાનિધ્યમાં અહીં આવીને ભગવત કથા શ્રવણ કરીને આપણે જીવનને આંદોલિત કરી રહ્યા છે અધ્યાત્મની તરંગોમાં. તો આપણે અંદર જે વિદ્યમાન અધ્યાત્મ છે એને જાગૃત કરવાનો જે પ્રયત્ન છે એ પ્રયત્નનો મુખ્ય જે સૂત્રધાર છે આ શ્રીમદ ભાગવત છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમાં અવગાહન કરીને આપણે આધ્યાત્મિક તરંગોને જ્યારે જાગૃત કરીશું તો પરમાત્મા ત્યાં વિરાજમાન એ આત્માના ચેતન સ્વરૂપને જોશે તો એ આવીને એ આત્માને સ્વીકાર કરશે, એ ભાવને સ્વીકાર કરશે. કેમ કે શ્રીમદ ભાગવત એ ભાવની સ્થાપના કરે છે. શ્રીમદ ભાગવત ભાવની સ્થાપના કરતી હોય છે. નહીં તો તમે ક્યાંય જતા રહો, તમારો ભાવ ના બને. હા, એટલું બધું તમે 56 ભોગ ઠાકોરજી માટે બનાવીને લાયા. તમે રેડીમેડ પણ લાવી શકો છો, ઘણું રેડીમેડ પણ છે, જોવાઈ ગયો છે. તો ભક્તિ ક્યાં છે? ભક્તિનો પરિપાક જ્યારે તૈયાર થાય, જ્યારે વ્યક્તિ વિચારતો હોય કે મારે ઠાકોર માટે તો મારે જાતે મહેનત કરવાની છે. આ અલકાબેન છે રોજ તુલસીજીની એવી સુંદર માળા ગોઠવીને લાવે છે. એટલે એમને એવું થાય છે કે મારા ભાગવતજી ઉપર મારી તુલસીની માળા સુંદર. ગીતાબેન છે રોજે આ માળા બનાવીને લાવે. ગીતાબેન સવારે પૂછતા હતા કે 5 દિવસ થયા હજી સુધી નામ આવ્યું નહીં. એટલે સુંદર રોજે કે અને એવું ડાયરેક્ટ ના પૂછે કે રીતે માળા છોટી તો નહીં પડતી, થોડી વાર મોટી કરી. એને મેં સમજી ગયો કે આજે નામ દેવાનું. તો અમારા બધા ભક્તો ભલે ઓછા છે, અમારા ભક્તો ઓછા છે પણ हमारा પોતાના છે, हमारा परिवार है. अरे भीड़ तो सब्जी मंडियों में इकट्ठी होती है. जौहरी की दुकान पर तो कोई औकात वाला ही पहुंचता है. तो हमारे यहाँ जितने भी हैं सब औकात वाले हैं, भीड़ करने वाले नहीं. तो ऐसे सुंदर भगवत कथा का रसास्वादन करने के लिए आप जब यहाँ पधारे हैं तो आप सबको खूब खूब अभिनंदन. ऐसी भगवान की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की तरंगों को, अध्यात्म की तरंगों को आंदोलित करिए और नित्य प्रसन्नता का अनुभव करें. नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नाता शुचिरलंकृता. यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ तो सभी लोग बड़े आह्लादित हुए. आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता. और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और लाला का जात कर्म संस्कार कराया. स्वस्ति वचन पूर्वक जात कर्म संस्कार कराया और जितने भी लोग आए थे उन सबको बधाई दी गई. कल हमारे पास समय नहीं था बधाई देने का, क्योंकि समय का अतिक्रमण हम लोगों से हो रहा था, इसलिए हम लोग बधाई नहीं दे पाए. तो आज आप सभी को घर जाने से पहले यहाँ से बधाई दी जाएगी.
या तो आप एक एक व्यक्ति आकर यहाँ से बधाई लेके जाएं, या फिर हमारे कोई 2 व्यक्ति लगकर सब जगह बधाई बांटेंगे। तो वो भगवान की बधाई को अपने तिजोरी में या अपने सेवा में रखें। लड्डू वड्डू तो मिलेंगे तो वो खा लीजिएगा प्रसाद, बाकी आज सबको बधाइयाँ दी जाएंगी। तो ऐसा सुंदर भाव। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। तो सुंदर स्वस्ति वाचन पूर्वक जात कर्म संस्कार हुआ। सभी गोपियां जो सुंदर वेश को धारण कर सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने लाला को देखने के लिए गई है। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबराः पतिशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सवलया व्रजतिर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ऐसे सुंदर श्रृंगार को किया है और ऐसी ऐसी नई नई साड़ियां निकाली है कि उनके स्वयं के श्रीमान देखते हैं कि ये साड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतनी सुंदर साड़ी, इतना सुंदर श्रृंगार, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। और सुंदर कुंडल पहने हैं, हार पहना है जो वक्षस्थल को स्पर्श करते हुए सुंदर रोमांचित कर रहा है। ऐसा सुंदर श्रृंगार। और इस श्रृंगार को रचकर जब गोपियां गई है नंद भवन की तरफ, तो 6 दिन तक ये नंद भवन में नंदोत्सव चला। 6 दिन तक। हम लोग तो कोई उत्सव मनाते हैं तो 6 मिनट का मना सकते हैं या 2-4 घंटे का मना सकते हैं, पर यहाँ पर नंद भवन में ये उत्सव चला है 6 दिन का। और संपूर्ण उत्सव का उपसंहार करने के पश्चात आज नंद बाबा ने विचार किया कि 6-7 दिन की छुट्टियां हो गई, अब मुझे कंस को टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मथुरा। तो मथुरा जाने के लिए निकले हैं और सुंदर मक्खन इत्यादि के जो घड़े हैं उनको शकट पर रखा है, बैलगाड़ी पर रखा और निकले हैं मथुरा जाने के लिए। तो मथुरा जी में जैसे ही पहुंचे, वहां पर टैक्स जो कर है उसको चुकाने के पश्चात यहाँ पर नंद बाबा ने सोचा मैं वसुदेव जी से मिलूं। वसुदेव जी से मिलने पहुंचे तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, जब गोकुल में इतने उपद्रव चल रहे हैं और वहां आपका लाला इतना छोटा है, उसको अकेले छोड़कर आप यहाँ आए कैसे? आपको शीघ्र जाना चाहिए, पुनः आप गोकुल चले जाइए। और इधर नंद बाबा और वसुदेव चर्चा कर रहे थे, उसी समय कंस के द्वारा प्रेषित एक बाल घातिनी राक्षसी जिसका नाम था पूतना, वो पूतना आ गई अपने दिव्य सौंदर्य को लेकर और संपूर्ण ब्रजमंडल में वो नवजात शिशुओं को ढूंढती और नवजात शिशुओं को दुग्ध पान कराकर मृत्यु मार देती थी। तो वह ढूंढते ढूंढते जब गोकुल में पहुंचे और नंद भवन के अंतःपुर में जब उसने प्रवेश किया तो घर के आंगन में बैठी है यशोदा मैया अपने लाला को लेकर, और ऐसी खूबसूरत ऐसे दिव्य जब गोपी को देखा, पूतना जो थी उसे देखा, तो मन में भाव आया कि ये गोपी अपने यहाँ की नहीं है, इतनी सुंदर गोपी तो हमारे यहाँ थी नहीं, तो ये जरूर कोई दिव्य गोपी है, इसे बधाई देना चाहिए। तो ऐसा भाव जागा तो लाला को वहीं रखा और स्वयं अंदर गई है बधाई लेने के लिए। इस अवसर को जानकर पूतना ने लाला को उठाया और लाला को उठाकर नंद भवन से बाहर की तरफ भागी है और बाहर भागकर अपना जो विष लगा हुआ स्तन था वो स्तन लाला के मुंह में दिया है। लाला उस स्तन से दुग्ध पान भी कर रहे हैं और दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। पर जब लाला ये कृत्य कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, उस समय लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो संत लोग बताते हैं कि लाला ने अपनी आंखें क्यों बंद की। तो यहाँ पर कई संत ऐसा भाव भी बताते हैं कि लाला ने अपनी आंखें, अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि नेत्रों से प्रीति होती है, नेत्रों से प्रेम बढ़ता है। कोई भी युवक युवती है, पहले एक बार नेत्रों के इशारे, नेत्रों के संकेत, नेत्रों के जो इंगित है उनको समझ के ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाला ने सोचा अगर मेरे नेत्र रहेंगे और ये पूतना मेरे नेत्रों में झांकेगी तो शायद इसे मुझसे प्रेम हो जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वभाव ऐसा है कि उसे जो देख ले और उसे प्रेम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग कृष्ण प्रेम के कारण ही तो यहाँ पर मंदिरों में और देव स्थानों में, धर्म स्थानों में जुटे रहते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। कितनी पब्लिक,
वहां तिरुपति बालाजी जाइए तो भगवान से प्रेम है, भगवान के नेत्र, इसलिए भगवान के नेत्र की ऐसे दिव्यता है, इसलिए ही तो तिरुपति बालाजी में भगवान के नेत्र पूर्णतया खोले नहीं जाते। तो ऐसे भगवान के सुंदर नेत्रों में झांकने से पूतना को यदि प्रेम हो गया और प्रेम होने के कारण फिर मैं इस पूतना को मारूंगा तो मित्रद्रोह का दोष लगेगा, क्योंकि कभी किसी प्रेमी को धोखा देना सबसे बड़ा दोष कहा जाए। तो ये अगर मुझसे प्रेम करने लगी और मुझ पर विश्वास करने लगी, क्योंकि प्रेम का ही दूसरा नाम है विश्वास। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो प्रेम का ही दूसरा नाम विश्वास होता है। ऐसे विश्वास, और इस विश्वास को यदि मैं खंडित करूंगा तो दोष लगेगा, इसलिए लाला ने नेत्र बंद कर दिए। दूसरे संत ने यह कहा कि लाला ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि लाला ध्यान कर रहे हैं शिव जी का कि शिव जी जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो आपने जिस प्रकार ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहल विषम, आपने उस भयंकर विष का पान कर लिया, तो ये पूतना जो हलाहल विष लगाकर आई है, मुझे भी वो सामर्थ्य मिले कि मैं इस विष को पान कर सकूं, इसको सहन कर सकूं। इसलिए शिव जी का ध्यान करने के लिए लाला ने आंखें बंद कर दी। तीसरे संत ये भाव रखते हैं कि लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि लाला सोचते हैं कि अच्छी वस्तु का दर्शन करना चाहिए, अच्छी चीजों का दर्शन करना चाहिए। और ये पूतना तो बाल घातनी है, घर घर जाकर नवजात बच्चों को मारती है, तो इसका दर्शन करूंगा तो ठीक नहीं है, इसलिए लाला ने नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। भगवान को इसलिए ही तो सुबह सुबह पुजारी लोग जब आरती करते हैं और मंगला करते हैं तो हरीसा दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान को तैयार करने के बाद भगवान को हरीसा, भगवान को कांच दिखाया जाता है कि भगवान आपसे सुंदर कोई नहीं। और वस्तुतः भगवान से सुंदर कोई नहीं है, पर हमारी वैसे दृष्टि नहीं बन पाई। हम भगवान के यहाँ जाते हैं, मैंने देखा है कई लोग दर्शन करने भगवान के यहाँ जाते हैं तो वहां जाकर ऐसे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पता नहीं क्या बुदबुदाते हैं, मेरे आज तक समझ में नहीं आया, और प्रदक्षिणा करके निकल जाते हैं। बाहर जाकर उसी व्यक्ति से पूछोगे तो भगवान के दर्शन करके आया, इतना पता कि भगवान ने कौन से वस्त्र पहने, तो उसे नहीं पता होगा, क्योंकि उसने तो वहां जाकर आंखें बंद कर ली। आंखें ही बंद करना था तो घर पे ही कर सकता था, वहीं ठाकुर जी दिख जाते। यहां तो आया है दर्शन करने, और दर्शन का महत्व है कि ये जो आंखें हैं, अक्षण बताम फलमिदं न परम विदामः, अपने शरीर की जितनी भी आंखें हैं, जितने भी रोम हैं, उन सबसे ठाकुर जी का दर्शन हो, उसको तो दर्शन कहते हैं। तो दर्शन का मतलब ये नहीं कि वहां जाकर केवल ये देखे अच्छा आज ये माला ठीक नहीं है, आज पुजारी यहाँ नहीं है, आज ये ठीक नहीं सफाई, ये नहीं। ये जो भाव दूसरों के आते हैं, आप देख लीजिए, भक्त होगा उसको केवल भगवान दिखेंगे, और भक्त से इतर होगा उसको बाकी सब कमियां दिखेंगी। तो हमें भक्त से इतर नहीं बनना है, हमें तो भक्त बनना है, भक्त की परंपरा में जुड़ना है। तो यहां पर जैसे धनुर्दास हुए श्रीरंगम क्षेत्र, गुरुजी धनुर्दास कहां हुए? तिरुपति के श्रीरंगम। तो धनुर्दास हुए, वो धनुर्दास एक स्त्री में इतना आसक्त थे कि उस स्त्री को देखते देखते उल्टे चलते, एक छाता ले लेते और छाता लेकर उल्टे चलते। रामानुजाचार्य जी महाराज उसी समय भगवत दर्शन को जाते, उन्हें बड़ी ग्लानि होती कि भगवान के ऐसे दिव्य धाम में रहते हुए ये युवती में इतना आसक्त है कि देखो उल्टा चल रहा है और छाता लेकर चल रहा है। प्रतिदिन उसको देखते, रामानुजाचार्य जी दर्शन करने आते और वो उधर से कहीं से और से आता, मार्केट में भी मिल जाते तो देखते तो आश्चर्य होता। एक दिन धनुर्दास को पकड़ा और कहा कि तुम इस युवती में ऐसे उल्टे चलते, एक पलक क्या देखते रहते हो इसे? तो वो धनुर्दास कहता है मुझे इससे सुंदर कोई दिखता नहीं, संसार में इससे सुंदर मुझे कोई लगता नहीं,
इसलिए मैं निरंतर इसे देखता रहता हूँ। मुझसे एक पल के लिए भी ये युवती मुझसे अलग ना हो, इसलिए मैं इसे निहारा करता हूँ, देखता रहता हूँ। तो रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें इससे सुंदर वस्तु में दिखा दूं तो, तुम्हें इससे सुंदर कुछ दिखा दिया जाए तो कहा मैं मान ही नहीं सकता इससे सुंदर कोई हो सकता है। अगर इससे सुंदर कोई होगा तो मैं फिर इसको छोड़कर उसका हो जाऊंगा। अब रामानुजाचार्य जी अपने घर पहुंचे हैं और रात भर भगवान को बड़ी प्रार्थना की। दूसरे दिन रामानुजाचार्य जी ने उसको धनुर्दास को पकड़ा, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसको लेकर गए भगवान के दिव्य दर्शन कराने। और दिव्य दर्शन कराने गए, भगवान के सामने खड़ा कर दिया और जैसे ही आंखों के पट्टी खोली, भगवान के दिव्य दर्शन करके उसका भाव भगवान के चरणों में समर्पित हो गया और फिर वो भगवान का गुलाम बन गया, भगवान का चाकर बन गया। फिर युवती के पीछे नहीं गया, क्योंकि ऐसी दिव्य दृष्टि जब सदगुरु मिलते हैं तो ही खुलती है। तो रामानुजाचार्य जी महाराज जैसे सदगुरु, जिन्होंने रात भर भगवान से प्रार्थना की कि मैं ऐसा दर्शन कराइए कि फिर ये अन्यत्र कहीं जा न सके। तो हमारे गोविंद बड़े सुंदर हैं, पर वस्तुतः हम उनकी सुंदरता को निरख नहीं पाए, जान नहीं पाए, इसलिए हमें वो सौंदर्य प्रतीत नहीं होता। माताएं बहनों को बड़ी शिकायत होती है कि पहले ये हमें प्रेम करते थे, अब प्रेम नहीं करते। माताओं बहनों को यह शिकायत इसलिए होती है क्योंकि उस समय आकर्षण का पर्दा जो है वो आंखों पर चढ़ा रहता है, और जब वो आकर्षण का पर्दा हट जाता है तो वो प्रेम दिखाई नहीं देता। पर भगवान के साथ जो प्रेम होता है उसमें आकर्षण का पर्दा नहीं होता है, उनमें वास्तविक भक्ति का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब धनुर्दास ने भगवान के ऐसे दिव्य सौंदर्य को देखा तो भगवान में समर्पित हो गया, भगवान में ही एक भाव में बन के रह गया। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी ताकत है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी ताकत है, उससे 100 गुनी अधिक ताकत इंद्र के हाथ में है, और इंद्र के हाथ में जितनी ताकत है उससे 1000 गुना अधिक ताकत हनुमान जी की हथेली में है। हनुमान जी की हथेली में जितनी ताकत है उससे 1,00,000 गुना अधिक ताकत बलराम जी की अंगुली में है, और बलराम जी की अंगुली में जितनी ताकत है उससे करोड़ गुना अधिक ताकत हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर की मुस्कान में है। पर उस ठाकुर का दर्शन करने की वैसे दृष्टि तो आपको चाहिए, वो दृष्टि तो आपको लाना ही पड़ेगी, और वो दृष्टि जब आप जीवन में अपने सदगुरु के पास बैठकर सीखेंगे तो वो दृष्टि जरूर आएगी। तो आवश्यकता है कि वैसे दिव्य सौंदर्य का दर्शन करें। तो यहाँ पर अच्छी वस्तुओं का दर्शन करना है। ये पूतना बाल घातिनी है, इसका दर्शन नहीं कर सकता, इसे देखना नहीं चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लेते हैं। और चौथा भाव किसी ने यह भी रखा है कि मेरी दृष्टि स्वभावतः दुष्टों के हृदय में भय को उत्पन्न करती है। जो दुष्ट होता है वो भयभीत हो जाता है, इसलिए शायद ये पूतना भयभीत हो जाए और मुझे छोड़कर भाग जाए तो मैं इसका उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूतना ने मुझे दूध पिलाया है और वो दूध का कर्ज है कि ये मेरी माता बन गई, तो इसका उद्धार करने का दायित्व तो मुझ पर है, इसलिए मैं अभी इसको देखूंगा नहीं, क्योंकि ये भयभीत होकर मुझे छोड़कर भाग गई तो उद्धार नहीं होगा, और मेरी इतनी अवस्था नहीं है कि मैं इसके पीछे जाकर इसे पकड़ूं। इसलिए भी शायद भगवान ने नेत्र बंद कर ली। ऐसे बहुत से भाव संतों ने वहां प्रस्तुत किए हैं कि भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए। और भगवान जब दूध के साथ धीरे धीरे उसका प्राण भी खींचने लगे तो सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पिड्यमाना जीव मर्मणि, वह कहती छोड़ दो मुझे छोड़ दो, पर भगवान ठाकुर किसी को एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। यह हमारी प्रवृत्ति है, हमारी प्रकृति है कि हम लोग किसी का साथ पकड़ते हैं, पर हमारी कार्य सिद्धि के बाद हम उसे छोड़ देते हैं। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो गुरु हो, या चाहे वो जीव हो, हम लोगों की प्रकृति ऐसी है कि हमें जहाँ से कार्य सिद्धि होती है उतनी देर उस व्यक्ति के आगे पीछे हम लोग रहते हैं। जब हमारी कार्य सिद्धि वहां से हुई तो हम लोग उसे भूल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। पर भगवान ने आज पूतना को पकड़ा है तो पूतना को भगवान छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि पूतना को धात्रोचिताम गतिम प्रदत्ता, माता को जो गति मिलनी चाहिए वो गति भगवान देना चाहते हैं। और इसलिए भगवान ने धीरे 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 उसके प्राण भी खींचने लगे, और जब प्राण खींच लिए
तो वो निष्काय हो गई, निष्क्रिय हो गई और वहां पर 6 कोस लंबी काया उसकी धड़ाम करके भूमि के ऊपर गिरी है, जो कंस के बगीचे तक गई है। ये ध्वनि को सुनकर जितनी यशोदा तो नंद गोपुरिंद सभी वहां पर आ गए और उन्होंने देखा कि ये इतनी विशाल काय कौन है राक्षसी, अभी तो यहाँ आई थी एक सुंदर गोपी और ये इतनी बड़ी विशाल काली कैसी राक्षसी है। और उधर से नंद बाबा जब आ रहे थे तो नंद बाबा ने मार्ग में इतनी लंबी काया पड़ी हुई देखी, बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। आकर सभी गोपुरिंदों से पूछा भाई ये कौन है, तो कहा पता नहीं, पर इनके वक्षस्थल पर लाला खेल रहे थे और दूध पी रहे थे, इसलिए लाला से कुछ संबंध रखती है और लाला से इनका माता का संबंध हो गया। तो लाला को तो रक्षा विधि करके हटा लिया गया, पल्ले में रखा। अनंतर पूतना के शरीर के अनेक टुकड़े कर दिए गए और चिता पर उन्हें रखा गया। आज जब उसकी चिता को दाह दिया गया, अग्नि दी गई, तो संपूर्ण ब्रजमंडल में ऐसी सुगंध व्याप्त हो गई, क्योंकि भगवान ने उसे निर्मल बना दिया। भगवान का स्पर्श मात्र हमें निर्मल बना देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रतिदिन ऐसा नियम जीवन में रखें कि ठाकुर जी के दर्शन करना, और ठाकुर जी के दर्शन करने के पश्चात ठाकुर जी के जो छवि सामने है, जो स्वरूप सामने है, जो श्री अंग, जो श्री विग्रह सामने है, वो आपके नेत्रों के मार्ग से आपके हृदय में उतर जाए और वो ठाकुर जी पूरे दिन आपके साथ रहे, तो आपका अंतःकरण पवित्र होगा। और जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा तो उसमें किसी प्रकार के दोष भी नहीं रहेंगे। ऐसा सुंदर भाव है। विपरीत मोह से की इस भरोसे पे की, विपरीत मोह से की इस भरोसे पे की, 4 जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 जिंदगी के गुजर जाएंगे।